چینل امام عصر دعوت انسانیت والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات۔ قابل قدر مومنین و مومنات، سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں آج کے جشن سبت اکبر امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کے بانیان اور افطار کے بانیان، خدمت گزاران حسینیہ، بانیان حسینیہ، حضار محترم، شرکت کنندگان، سب کے مرحومین اور مرحومات کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اس جشن کے سبب اللہ آپ سب کو زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے، ہر دکھ تکلیف رنج و الم مصیبت سے محفوظ و مصون فرمائے، منظورین مرض المؤمنین کو اللہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب آپ کے سپاہیوں میں سے قرار پائیں، آپ سب کو اللہ تعالی حج و عمرہ و زیارات کی بار بار توفیق خیر نصیب فرمائے، رزق و مال میں برکت ہو، اہل و عیال میں برکت ہو، عمر دراز نصیب ہو، خاتمہ علل خیر ہو۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ چند منٹ کے لیے آج اور اتنی ہی ڈیوریشن کے لیے کل اس جشن سے خطاب کروں گا۔ آج کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابن وائل ایک شخص تھا بہت ہی خبیث الفطرت، ابن وائل، اور ایک رشتہ دار تھا حضور کا، تایا لگتا تھا، ابو لہب، اور ایک دور کا رشتہ دار تھا ابو جہل، اور ایک مکے کا باسی تھا ابو سفیان۔ ان چار لوگوں نے حضور کو کئی دفعہ طعنہ دیا، اور زیادہ جو سامنے بھیجتے تھے وہ ابن وائل کو بھیجتے تھے کہ اولاد تو ہے نہیں، یعنی اولاد ذکور میل ہے نہیں، تو جب یہ چلا جائے گا تو دین اس کے ساتھ ہی مقبرے میں دفن ہو جائے گا، یہ طعنہ دیتے تھے حضور کو۔ حضور کو جب یہ طعنہ دیتے تھے تو اللہ کی ذات نے مکے کی زندگی کے طعنوں کا جواب یہ دیا، اللہ نے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک فصاحت و بلاغت میں چیپٹر ہے 7 معلقات، ایک کتاب بھی ہے، ایک بڑی ٹفسٹ بک ہے عربی کی، جو سسٹم کے مولانا بنتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے تاکہ ان کا ادب لٹریچر اچھا ہو جائے۔ وہ 7 قصیدے ہیں زمانے جاہلیت کے عرب کے 7 مشہور ترین شعراء کے، وہ قصیدوں کو لٹکا گئے کعبے پر، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی میں دم ہے
تو ہمارے قصیدوں کے مقابل لٹریچر سے بھرا ہوا اپنا کلام لے آئے. جب سورہ مبارک کوثر کو اللہ نے نازل فرمایا تو یہ ساتوں کے ساتوں اپنے قصیدے اتار کے لے گئے اور یہ جملہ لکھ گئے ما ھذا کلام البشر، یہ سورہ کوثر بشر کا کلام نہیں. دوسرا نقطہ آج کے سلسلہ گفتگو کا یہ ہے کہ سورۃ الکوثر در اصل نسل پیغمبر کے بارے میں اظہار الہی ہے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. جب قرآن میں اللہ ہم سے گفتگو کرے، ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جب انا یعنی ہم کا لفظ آئے تو اس میں انفورسمنٹ کا تعلق ہوتا ہے. یعنی جو میسج ہم دے رہے ہیں اللہ فرمانا چاہتا ہے اس میسج کو اگر نہیں مانو گے تو ہم نبٹ لیں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کر دیا. جو منکر قرآن ہوگا اس سے ہم نپٹیں گے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کثرت اولاد خیر کثیر اپنے حبیب کو دے دی ہے. جو فاطمہ اور ان کی اولاد کا دشمن ہوگا نبی ان سے نہیں نپٹیں گے، میں نپٹوں گا، خدا نپٹے گا. یہ انفورسمنٹ کے لیے انا کا لفظ آتا ہے عربی کے اندر. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ 5 الفاظ ایسے ہیں اس سورۃ الکوثر میں جو اللہ نے قرآن مجید میں ریپیٹ نہیں کیے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن ریپیٹیشن پہ بیس رکھتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، میرے حبیب آپ بھی بار بار ریپیٹ کرتے رہا کریں. ریپیٹ کرنا فائدہ دیتا ہے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے بار بار. اب دیکھتے نہیں بار بار ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بار بار ہم سورتیں پڑھتے ہیں، بار بار ہم درود پڑھتے ہیں، بار بار ہم ذکر محمد و آل محمد کرتے اور سنتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے 5 ایسے الفاظ ہیں جن کو بالکل ریپیٹ ہی نہیں کیا. انا اعطیناک، آتیناک گزر چکا ہے، پرسوں بتایا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. آتَيْنَاكَ پورے قرآن میں ایک مرتبہ آیا. الکوثر پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، پھر ریپیٹ نہیں ہوا، نہ پہلے نہ بعد میں. وَانْحَرْ پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، کہیں اور نہیں آیا. شان آقا پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے، ریپیٹ نہیں ہوا. وَانْحَرْ بھی پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے، ریپیٹ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی پر کوئی احسان کریں اور اسے بار بار یاد کرائیں تو یہ مناسب نہیں ہے. جو اچھا محسن ہوتا ہے وہ بار بار یاد نہیں کراتا. اللہ نے فرمایا جب احسان کیا ہے، عطا کی ہے کوثر کی شکل میں، تو ان لفظوں کو ہی کیا ریپیٹ کرنا، بار بار ہم یاد ہی نہیں کرائیں گے. تو جو خدا الفاظ ریپیٹ نہیں کر رہا وہ محمد کی بیٹیاں کیسے ریپیٹ کرے گا. گویا یہ ریپیٹ نہ کرنا توحید و بنت رسول کا ذریعہ ہے. اب
चौथा नुक्ता आज का ये है कि अगरचे ये सूरा नाजिल हुआ बीबी पाक के हक में, खैर कसीर से मुराद वजूद मुबारक सैयदतु निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा है। अलबत्ता ये जहन में रख लें कि उनका एतराज मेल औलाद पे था कि इसके बच्चे जो थे वो चले गए दुनिया से, अब मेल तो इसकी औलाद है कोई नहीं, तो नस्ल इसकी कैसे चलेगी। तो अल्लाह ने पहले तो ये तय किया कि नस्ल ही खैर कसीर से चला दी, मिसदाक कौसर से चला दी, मिसदाक आयत तहीर से चला दी, शाफिया यौम जजा से चला दी। तो अगर मैं ये कहूं कि इस सूरत की थ्योरी कौसर है, प्रैक्टिकल वजूद हसन मुज्तबा, इसलिए इसको पांचवा नुक्ता समझ लीजिए आज का। इसलिए कि कुछ होते हैं हसबी सैयद, कुछ होते हैं नसबी सैयद, कुछ हसबी नसबी होते हैं। हसब कहते हैं जो क्वालिटी हो आपके अंदर, हमारे अंदर, उसको हसब कहते हैं। एक आदमी शरीफ है, एक नेक है, ये हसब है। नसब होता है जो फैमिली ट्री, जहां से फैमिली ट्री का ताल्लुक हो, वो कहते हैं नसब। निस्बत से है नसब और हिसाब से है हसब। हिसाब रखते हैं ना, एक आदमी वफादार है, लॉयल है, ये उसका हिसाब है, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है, ये उसका हसब है। नमाजी है, रोजादार है, कारी है, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है। एक सैयद है, खान है, आवान है, चौधरी है, फुला खानदान से, ये उसका नसब है। तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पहले हसबी सैयद तो गुजरे थे। सैयदुल अंबिया हुजूर, सैयदुल औसिया इनके बाबा, सैयदुल मलाइका जिब्रील, सैयदतुन निसा इनकी मादर गिरामी। कायनात में पहला नसबी सैयद आया है इमाम हसन मुज्तबा की शक्ल में। यानी सादात किराम का जो ओरिजिन चला है वो हमारे करीम अहले बैत से चला है। इमाम हसन सब्ज कबा शहजादा अमन से चला है, फर्जंद रसूल से। हसब और नसब जो सादात का हसबी नस्बी जो सादात क़यामत तक मौजूद रहेंगे, उनके पहले सैयद का नाम हसन मुज्तबा। छठा नुक्ता आज का यह है कि हसन, हसन हासोना याहसुनो से है। हसन हासोना याहसुनो के बाब से है, चैप्टर से। हासोना याहसुनो में, शारोफा यशरो में, फाउला यफउलो में अजीब ये मंतिक है कि इसमें फाइल आता ही नहीं है, सिर्फ सिफत मुशब्बहा आती है। इसमें फाइल में और सिफत मुशब्बहा में ये फर्क होता है। इसमें फाइल कभी होता है, वो सिफत कभी मौजूद होती है और कभी नहीं होती। जारिब, नासिर, कातिब, कातिब लिखने वाला, कभी वो लिख रहा है, जब सो रहा है तो वो कातिब नहीं है, इसलिए कि वो सो रहा है तो लिख नहीं रहा है। मुतकल्लिम बोल रहा है तो मुतकल्लिम है, जब नहीं बोल रहा, चुप है, सामिअ है, तो मुतकल्लिम नहीं। सामिअ है, सुन रहा है तो सामिअ है, सो रहा है तो सुन भी नहीं रहा है। इसमें फाइल की सिफत टेम्परेरी होती है, कभी होती है कभी नहीं होती। मगर शरीफ सो भी रहा हो तो कहते हैं शरीफ सो रहा है। ये आली में और अली में ये फर्क है। फर्क है ये आली जो कभी बुलंद हो कभी बुलंद ना हो,
अली जो दुनिया में भी बुलंद हो आखिरत में भी बुलंद हो, हसन भी उसे कहते हैं जो दुनिया में भी खूबसूरत हो आखिरत में भी खूबसूरत। आठवां नुक्ता आज के जश्न का यह है कि हसन या हुसैन ये दोनों नाम पहले नहीं गुजरे। शब्बर व शुबैर गुजरे हैं, हारून के बेटों के नाम, जिसका तर्जमा बनता है हसन व हुसैन, मगर हसन और हुसैन ये पहले नाम हैं इन शहजादों के। गोया हसन नाम साबिका नहीं रखता, सबसे पहले कायनात में जो हसन है वो फातिमा के बड़े साहिबजादे, इनसे पहले हसन कोई नहीं गुजरा। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि हुसैन अलग नाम ही नहीं है, अब अरबी को जाके देखें, रजुल का मुसग्गर बनाएं, रुजैल बनता है। रजुल बड़ा मर्द, रुजैल छोटा मर्द। जो बड़ा हसन है वो हसन है, जो छोटा हसन है हुसैन है। यानी हुसैन को बड़ा कर दे तो हसन बनता है, हसन को छोटा कर दे तो हुसैन बनता है। यह अजीब इत्तेफाक है कि यह नाम किसी और का है ही नहीं। नवा नुक्ता आज का यह है, बड़ी तवज्जो से इस नुक्ते को खास तौर पे आपने सुनना, कि तौजी बयान की गई, लिमाजा सुम्मी अल हसन व हसना। ये जवानों को मैं कह रहा हूं, बुजुर्ग तो जानते हैं, ये हसन नाम नहीं है। अक्सर जो स्पेलिंग आप लोग करते हैं ना वो गलत लिखते हैं, HASSAN, ये नहीं है। इमाम का नाम हसन नहीं है, हसन है, फाल के वजन पे हसन, HASAN। आपका जो नाम है वो रहने दीजिएगा, उसको गलत ना लिखिएगा, वरना जहाज पे चढ़ने नहीं देंगे। उसको आपने ऐसे ही रखना है। अगर आपके नाम में है तो डबल एस ही रखें, मगर इमाम के नाम में डबल एस नहीं है। हुसैन भी ऐसे ही है, मेरे नाम में भी सखावत हुसैन HUSSAIN है, हालांकि इमाम हुसैन का नाम हुसैन नहीं है, हुसैन है, रुजैल हुसैन। ये जो नवा नुक्ता मैं अर्ज कर रहा हूं ये है कि लिमाजा सुम्मी अल हसन व हसना, तौजी बयान की गई कुतुब सैयर में कि हसन का नाम हसन क्यों रखा गया। अब ये सुन के आप हैरान होंगे, लिअन्नल हसना इस्मुल्लाह तआला, अल्लाह के नामों में से एक नाम हसन है। ये इज्जत सिर्फ बाप और बेटे को मिली है कि अल्लाह ने अपना अली नाम बाप को दिया है, हसन नाम बेटे को दे दिया। 10वां और आखिरी नुक्ता, बाकी इंशाअल्लाह 10 नुक्ते कल आ जाएंगे, कल भी जश्न है इंशाअल्लाह। और आज की मैं माजरत भी चाहता हूं, हमारे यहां हज पे जब हम जाते हैं तो इस साल इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा जाएंगे, पिछले सालों में तो कोरोना की वजह से नहीं जा सके। तो जितने भी सफर हज के हुए, जब हम मनासिक से पलटते हैं तो हमारी हालत ये होती है कि हम दिन ही भूल जाते हैं कि दिन कौन सा चल रहा है और डेट कौन सी है, फ्लाइट व्लाइट का पता ही नहीं होता। तो थोड़ा तवज्जो करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि हम मनासिक रमजान के कबूलियत को पहुंच गए थे कल, कि डेट का इख्तिलाफ हो गया। मुझे समझ नहीं आई कि मैं कल 12 समझ रहा था, हालांकि कल 13 थी, तो इसलिए वो गलती से ऐलान हो गया। तो आज भी जश्न है और कल भी जश्न है। ये कबूलियत की दलील है। हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमने बनाया हुआ है कि जब हमें डेट भूल जाए, तारीख भूल जाए, दिन भूल जाए, तो समझो हज मुकम्मल हो गया है। तो अब डेट कल भूल गए तो इंशाल्लाह रमजान की इबादत मंजूर हो गई अल्लाह के फजल करम से। 10वां और आखिरी जो नुक्ता मैं आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहा हूं, इतना ही वक्त बाकी है। ये रिवायतें हैं 3, देखते हैं आज कितनी पढ़ सकते हैं।
ये तीनों रिवायतें अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से हैं। ये साहबी रसूल हैं और हुजूर के रिश्तेदार भी हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने एक जुमला तो ये कहा कि कानल हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में तो आपने हमेशा सुना है, ये रिवायत जरा मुख्तलिफ है। कानल हसनो यजलिसु अला ज़हर रसूलिल्लाह, हसन कई मर्तबा हुजूर सजदे में होते थे और हसन आके पुष्ट पे बैठ जाते थे। रिवायत सुनिए, लिखते हैं वमा युनज़्ज़िलुहु हत्ता यंज़िलु, रसूल ने कभी उनको नहीं हटाया जब तक वो खुद नहीं हटे। तो गोया इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी सजदे के आलम में हुजूर की पुश्ते मुबारक पे आए हैं और हुजूर ने नहीं हटाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज 1444 हिजरी में आप में से कोई साहब अपने नवासे को बिठा लें पुश्त पे फजर की नमाज में या हत्ता सुन्नती नमाज में, तो आप बताइए आप ऐसा करेंगे? तो आप कहेंगे मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करेंगे? जब हुजूर कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। तो यही बात है, ना हम हुजूर जैसे हैं ना हमारे नवासे हुजूर के नवासों जैसे। उनके लिए अहकाम इस्तिस्नाई है, एग्जम्पशंस हैं उनके लिए। दूसरी रिवायत बड़ी अजीब है, फरमाते हैं कि कान यदखुलो बैना रिजलैह, हसन आते थे नमाज में, हम जमात में नमाज पढ़ रहे होते, हुजूर जमात करा रहे होते और हसन हुजूर के पांव में दाखिल होने की कोशिश करते। काना यफ्तहु रिजलैह, तो हुजूर दौरान नमाज अपने पांव फैला देते थे। मकाम समझ में आ गया इमाम हसन मुश्तबा? यानी इनके लिए ahकाम शरीयत पीछे जा रहे हैं, इनकी वक़अत आगे आ रही है। बल्कि यूं क्यों ना कहूं, शरीयत इनके एक्ट से बनती है, जो ये करते हैं वो ऐने शरीयत बन जाती है। तो पैसेज दे देते थे हुजूर। और तीसरी रिवायत, और इसी पर आज का जश्न तमाम हो जाएगा, लिखते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि काना यहमिलुल हसन, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और हसन को एक हाथ से उठाया हुआ है दौरान नमाज। जरा गौर फरमाइए आप, दौरान नमाज हसन को उठाया हुआ है। मैं सोचने लगा कि जब रुकू में जाएंगे तो रुकू में तो दोनों हाथ लगाने होते हैं, तो जाहिर है कि हसन को गिरा देंगे। तो जब रुकू में गए, एक हाथ घुटने पे रखा, एक फातिमा के लाल पे रखा। अब समझ में आई बात कि यह वाजिब क्यों नहीं है घुटनों पे हाथ रखना। इसीलिए वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है क्योंकि इमाम हसन को हाथ में रखना था। तो आप देख रहे हैं कि हुजूर तस्बीह लंबी करते हैं तो हुजूर की नमाज बातिल नहीं होती, बल्कि हुक्म रब होता है, ज्यादा कबूल होती है हुजूर की नमाज। यानी लोगों के समझाने के लिए हुजूर पैसेज दे देते हैं जब शहजादा गुजरना चाहता है, और हुजूर अपने दस्ते मुबारक में हमायल फरमाए रहते हैं इमाम हसन को, और रुकू भी करते रहते हैं। तो जब हुजूर की नमाज बातिल नहीं होती, उसे 4 चांद लगते हैं। अगर हसन हाथ में हो, हसन पुष्ट पे हो, या हसन दौरान नमाज आ जाए, तो हमारी जिंदगियों में अगर मोहब्बत हसन हो तो नमाजों को भी 4 चांद लगेंगे, इबादतों को भी 4 चांद लगेंगे। दुआ करता हूं कि अल्लाह करीम इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह के सदक़े में आज के पाकीज़ा जश्न को, महफिल को हम सब से कबूल व मंजूर फरमाए। और शबे तवल्लुद सिब्त अकबर आ रही है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शबे तवल्लुद में अल्लाह हमारे गुनाहों की
मग़फ़िरत के सर्टिफिकेट की सूरत में ईदी अता फरमाए। 14 दिन तक बशमूल आज के जितने मोमिनीन मोमिनात सादात किराम इफ्तार लाते रहे, सहर का एहतमाम करते रहे, तशरीफ़ लाते रहे, खिदमत करते रहे, वॉलंटियर्स जो खिदमात अंजाम देते रहे, जो तकारीर दुरूस व मजालिस व महाफिल सुनते रहे, नज़ारत फरमाते रहे, अल्लाह आप सबको अजर जज़ील मरहमत फरमाए। तमाम इफ्तार लाने वालों के मरहुमीन, हुसैनिया के बानियान के मरहुमीन, हुसैनिया के वॉलंटियर्स के मरहुमीन, खिदमत गुजारान के मरहुमीन, आप सब के हुज़ार मोहतरम नाज़रीन नाज़रात के मरहुमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जैसा कि ऐलान किया गया है कि आज इमाम अलैहिस्सलाम की शब विलादत के तवस्सुत से और बरकत से पे ऑफ स्कीम को शुरू किया जा रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम मोमिनीन टोरंटो को, मोमिनीन कनाडा को, नॉर्थ अमेरिका के मोमिनीन और मोमिनात को तौफीक अता फरमाए कि 6 लाख कर्ज जो हुसैनिया का है ये अदा कर सकें और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो करीम अहले बैत हैं, जिनके नाम का दस्तरखान है, उनके करम से और उनके दस्तरखान से फैज़याब हो सकें। बहुत बहुत मुबारक। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।